So, good afternoon, everyone. So, what we did yesterday, we did some modals. Before that, I made you understand what is a verb. We did that yesterday. What is a verb? Can you just recap for a minute? Is something that denotes an action. A simple thing which contains an action is a verb. Example? Singing, Thinking, eating, Huh. dancing, reading. Yes, exactly. Running, jumping, swimming, speaking. There are many things which are associated as a verb which contains an action. So basically, what were the modals then? What were the modals then? They were the kind of helping the verb form. How they were helping? In making the sentence grammatically correct. Because if we'll not be having the modals in a sentence, our sentence would be grammatically incorrect. So that is why modals are there. They help the verb to form a proper correct sentence. So was there any other helping verb rather than modals? Except is-mr. What was is-mr? To be. Is-mr are not considered as modals, but they are part of the verb and they were classified under the To be one. to be verbs. So there was a auxiliary type of verbs. Okay. Yesterday I haven't mentioned about the primary auxiliary verbs, which was the third category. So there are basically three primary auxiliary verbs which you have to remember at all times. What is the main function of this primary auxiliary verb? Can you define the main function? One main function that they possess is only they are considered not only as a helping verb, but they are also considered as one of the main verbs. So this is the definition of a primary auxiliary verb. Are we clear on this? समझ आया कुछ? So अगर कोई पूछेगा what is a primary auxiliary verb, that can be considered as both helping and main verb. So what is a primary auxiliary verb? Be, do and have. So are we clear between the difference between the auxiliary or the to be verbs and the primary auxiliary verbs? Is the difference clear? The to be verbs are only helping verbs. Modals are only helping verbs, but they don't act as a main verb. But primary auxiliary verbs act as both helping verb as well as also a main verb. Are we clear? And what are the types of primary auxiliary verbs? Be, do and have. ठीक है? Any other doubt that you are having from the last class? All was clear? Okay. So yesterday we covered 2 or 3, I think 4 modals. Can, could, and what else that we covered? May, might and must. Okay. So let's recap something. What was must? Can you define an example on the must? How can we use must in an example? you must take admission in IIT. So she's saying that you must take admission in an IIT. That means you are doing what? मतलब आपको लेनी ही है तो. Yes, that is why we use must. We use must because we want that requirement must be fulfilled at any cost. You are not giving suggestion. You are telling someone that you must do this. You should not do this या should do this. वो suggestion में आ जाएगा. But here we are talking about must. Requirement है. इसके बिना काम नहीं चलने वाला. ठीक है? Any other use of must which you can remember? Can we use must for possibility also? How? Yes, when there is possibility of more than 50% chances
or 50% possibility, we use the modal must. Can you give an example of that? We must win the match. Hmm? We must. We must win the match. ये है मैच, हमें जीतना ही पड़ेगा. पॉसिबिलिटी, इसे पॉसिबिलिटी का कैसे आएगा? नहीं आएगा इसमें पॉसिबिलिटी का. ग्रामेटिकली सेंटेंस इज करेक्ट, बट वी हैव टू कंपेयर इट विद अ पॉसिबिलिटी. So I'll give you an example. Let's make there's a person who comes on a bicycle every day to the institute, and his clothes are also not properly pressed. He's from not a very well off family. So what we can figure out from that particular child, that he might be from or he may be from or he must be from a low family. तो उसका इतना स्वभाव देखने के बाद हम बोल सकते हैं कि इनके पास थोड़ा सा इनकी फैमिली बैकग्राउंड इज़ लो. ठीक है. सो वहाँ पर पॉसिबिलिटी फैमिली बैकग्राउंड लो होने की ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है. वाई? बिकॉज वी आर जजिंग हिम अकॉर्डिंग टू हिज अटायर, अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ्स, हिज जो भी है उसके पास. ठीक है. वहाँ पर मस्ट लगाएंगे. ही मस्ट बी फ्रॉम अ लो फैमिली या नॉट वेल ऑफ फैमिली. ऐसी एक और बच्चा है, ही कम्स एवरी डे ऑन हिज कार, his parents drop him off. So उसको क्या बोलेंगे? He must be rich. He must be from a well off family. ठीक है. A person who is knowing everything about science. So that means he must be an engineer of science. He must be a scholar in science. उसको सब कुछ पता है. तो possibility बढ़ गई ना. So यहाँ पर हम possibility के according we use the modal must. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया था? इतना किया I think. चलिए आगे करते हैं. आज का स्टार्ट कीजिए. राइट डाउन द नेक्स्ट मॉडल. शैल एंड विल. शैल एंड विल. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर शैल एंड विल. चलिए टेल मी वेयर टू अप्लाई दीज मॉडल्स शैल एंड वेयर वी कैन अप्लाई विल. बोलो. अकॉर्डिंग टू योर ओन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू योर ओन थॉट्स, एक्सपीरियंस, बताइए विल एंड शैल कहाँ यूज होता है? Yes, one will is used for the future, and then when shall is used? If will is used for the future, then when we use the modal shall? For the future also? So what is the basic difference that we can find out from this modal? बताओ, any difference which you can find out? चलो मैं एक possibility मतलब कह सकते हैं सर importance इसकी ज़्यादा है बिल या शेयर में से, वो शेयर में ज़्यादा होती है importance हमें करने की वो चीज़, बिल में थोड़ी कम होती है. Let's make an deep understanding by making an example. Example बनाते हैं तो आपने मुझे मतलब बताना, ठीक है? I will be attending party tonight. I shall be attending the party tonight. So what's the difference? I will be attending the party tonight means by hook or by crook, I will 110% be attending the party which is going to happen tonight. मैं आऊँगा या आऊँगा, कुछ भी हो जाए. So दूसरे एग्जाम्पल में बोल देखते हैं. I shall be attending the party tonight. So what's he saying now? 50%? 50% में तो may लगाते हैं, कल देखा था हमने. I may attend the party tonight. तो ये सबसे पहला यूज इसका याद रखना कि shall का जो फ्यूचर यूज है, it's basically 110% sure, same as that of will, but the only difference is I am not sure. I am sure from my side, but I am not sure if anything else happens. ठीक है. ऐसा ना हो कि किसी को कोई बीमार हो गया तो मुझे जाना पड़ गया ऑन द स्पॉट. अगर विल बोल दिया तो यू हैव टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क बाय हुक और बाय क्रुक. बट इफ यू यूज शेल, तो दैट मीन्स यू आर श्योर फ्रॉम योर साइड, बट इफ एनीथिंग हैपन्स फ्रॉम अदर साइड और द थर्ड पर्सन साइड, so that from that situation you have to change your decision.
ठीक है। कभी आपने आउट ऑफ बाउंड्री वाली लाइन क्रॉस की है, जैसे कि जहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, वहाँ लिखा होता है ना प्रोसिक्यूटर्स शैल बी पनिश्ड, फाइंड की लिखा होता है प्रोसिक्यूटर्स विल बी पनिश्ड, ट्रेसपासर्स विल बी फाइंड, ट्रेसपासर्स शैल बी फाइंड। क्या लिखा होता है? शैल की विल? कभी देखा ही नहीं इतने ध्यान से। वहां पर हमेशा वो शैल लिखते हैं। वाई? अगर तो विल लिखकर कोई क्रॉस कर गया, सपोज करो ही इज समवन एल्स बट ही इज हैविंग मेनी पावर्स विद हिमसेल्फ, ही इज वन ऑफ द इंस्पेक्टर्स ऑफ द लैंड अथॉरिटी, तो क्या उसको भी फाइन लगेगा? लेकिन विल लिखा हुआ है। अगर विल लिखा हुआ है दैट मीन्स कुछ भी हो जाए फाइन लगना ही लगना है। और अगर शैल लिखा हुआ है तो हमें आगे पता नहीं क्या हो जाएगा। शैल लिखा है तब भी फाइन लगेगा, बट देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। ठीक है। सपोज करो द वन हु क्रॉस द लाइन वॉज हिमसेल्फ अ वेरी पावरफुल मिनिस्टर, या कोई भी ऐसा इंसान था, क्या उसमें भी फाइन लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक मीनिंग समझ आया शैल एंड विल के बीच में। ठीक है। शैल में 110% श्योर होते हैं तब भी हम, लेकिन बाई चांस कोई उडिक्का ना आ जाए, जिसको हिंदी में बोलते हैं, कोई चीज़ ना करनी पड़ जाए, कोई चीज़ आके मतलब उस चीज़ को रोक ना ले। समझ गए? दैट इज द मेन डिफरेंस। लिखिए शैल एंड विल के बीच में, शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। Shall is used with first person I and we for the future tenses. Shall is used between by first person I and we for future tenses. All other persons take will. All other persons take will. बाकी सारे पर्सन्स विल लेते हैं। ऑल अदर पर्सन्स टेक विल। एग्जाम्पल लिखिए। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। And she will come with me. And she will come with me. And she will come with me. So who's the first person? Who's the second person here? I am the first person and she is the second person. You is the second person. ठीक है। We are the first person, they are the second person, you is the second person. तो बाकी जितने भी second person होंगे according to the grammar take the modal will and the first person always take the modal shall. ठीक है। Sir, I will go to tomorrow. I will go to college tomorrow. बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही है जो आपने बोला, लेकिन अगर वहीं पे फुल स्टॉप लग जाए तो इफ़ यू आर ऑल्सो एडिंग द सेकेंड पर्सन, ऑल्सो एसोसिएटिंग द सेकेंड पर्सन, जैसे यहाँ पे हमने किया है दैट शी विल कम विद मी, उसकी उस सेंटेंस में, उस सिनेरियो में फर्स्ट पर्सन शैल लेके चलता है और सेकेंड पर्सन विल लेके चलता है। इसलिए अगर आपने उतना ही बोला होता कि आई विल गो टू कॉलेज टुमारो या आई विल बी गोइंग टू द कॉलेज टुमारो, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। विल के साथ हाँ बिल्कुल लगता है। ठीक है। जैसे वी विल बी सेलिब्रेटिंग द पार्टी या वी विल सेलिब्रेट माई फ्रेंड्स बर्थडे टू नाइट, तो हमने यहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया ना। अगर हम और भी आगे लेके जाएं चीज़ों को, सेकंड पर्सन भी इंक्लूड कर लें, तो उसके लिए करेक्ट ग्रामर क्या है? यूज़ शैल विद द फर्स्ट पर्सन एंड विल विद द सेकंड पर्सन। ठीक है। जैसे कि आई शैल बी वेयरिंग माई बेस्ट ड्रेस टुडे एंड यू विल ऑल्सो डू द सेम। अब यहाँ पर हमने अपने साथ शैल लगा लिया
और सेकंड पर्सन के साथ विल लगा लिया। आर वी क्लियर? ओके, लिखिए नेक्स्ट। शैल, टू यूज शैल, ये ऐसे लिखना, टू यूज शैल विद द सेकेंड पर्सन, टू यूज शैल विद द सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू, और ही, शी, इट, दे, वो क्या बन जाएंगे? थर्ड, वो थर्ड पर्सन बन जाएंगे। आई एन वी इज द फर्स्ट पर्सन, यू इज द सेकेंड पर्सन, ही, शी, इट, दे इज द थर्ड पर्सन। ठीक है, तो क्या लिखा अभी आपने? टू यूज शैल विद द फर्स्ट पर्सन, कॉमा सेकेंड पर्सन, कॉमा थर्ड पर्सन, we use it, then we use it according to the case, according to different cases लिख लेना, according to different cases, according to different cases। फर्स्ट पे लिखिए कमांड, when you command someone, लिखिए एग्जाम्पल इसका कमांड में, you shall leave the building at once, you shall leave the building at once, you shall leave the building at once। So what's he saying? क्या बोल रहा है वो? कि तुम्हें यू शैल लीव द बिल्डिंग एट वंस, कि तुम्हें बिल्डिंग एट वंस, पहली बार कहने पे ही छोड़ देनी चाहिए। लाइक योर मदर स्कोल्ड्स यू एवरी टाइम, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, यू शैल लिसन टू मी एट वंस। एक बार जो बोल दिया उसी को मानो, बार बार मत बोलवाओ मेरे से। बोलते हैं कि नहीं बोलते पेरेंट्स? सो दिस इज हाउ वी गिव यूजुअली कमांड टू डिफरेंट पर्सन्स। यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर दो। यू शैल लीव द बिल्डिंग एट वंस, एक बार कहने पे ही बिल्डिंग को लीव कर देना चाहिए आपको। दिस इज काइंड ऑफ अ कमांड। तो वैसे तो हम सेकंड पर्सन के साथ विल लेके चलते हैं, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस इन विच वी यूज शैल विद द सेकंड पर्सन। लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज विद द कमांड। सेकंड एग्जांपल लिखिए, सेकंड सिमिलर केस लिखिए, प्रॉमिस। जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं तो क्या प्रॉमिस करते हैं किसी को, हम कैसे प्रॉमिस करते हैं? यू विल बी गिवन 10,000 रुपीज इफ यू फाइंड, इफ यू विल बी सक्सेसफुल इन फाइंडिंग आउट माई लॉस्ट डॉग। तो उसमें क्या आएगा? यू विल या यू शैल? यू शैल। बाय पॉसिबिलिटी है कि वो ना भी कर पाए, पॉसिबिलिटी है, और ये भी है कि अगर उसने ढूंढ भी दिया तो पूरे पूरे पैसे दे रहा हूँ मैं, हो सकता है जितने हैं उतने दे दिए हैं, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनी केस। अगर विल लगा दिया तो उतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हेन देयर इज अ प्रॉमिस यू ऑलवेज टॉक विद द मोडाल शैल। लिख लीजिए, यू शैल बी अवॉर्डेड, you shall be awarded, you shall be awarded। थर्ड लिख लीजिए, थ्रेट। अगर थ्रेट हो कहीं पर, थ्रेट खतरा, like the same example I told you before, trespassers shall be fined, trespassers shall be punished। एग्जाम्पल में लिख लेना, trespassers shall be prosecuted। You can write anything। नेक्स्ट लिखिए कंपल्शन, कंपल्शन। एग्जाम्पल,
You shall be here for the meeting. You shall be here for the meeting. You shall be here for the meeting. Tonight लिख लो चाहे. Tomorrow. You could write anything. You shall be here for the meeting. Clear? Okay. Write down the next rule for shall. Imperative sentences. Imperative sentences. IMPERATIVE. Imperative sentences that begin with imperative sentences that begin with let us or let's, the contraction form of let us. ये इसी का कमांड है, मतलब वही पॉइंट है. हाँ, the next rule for using shall or will. The imperative sentences beginning with let us or the contraction form. Contract कर दिया दोनों को, क्या बना दिया? Let's, will have, will always have लिखना, will always have shall we in the question tag. Will always have shall we in the question tag. Will always have shall we in the question tag. तो imperative sentences में आप किसी को ऑफर भी दे रहे हो और उसको कुछ करने के लिए भी बोल रहे हो at the same present moment of time. Let's take an example to get more understanding. Let's dance together. Shall we? तो हम किसी को पूछ रहे हैं और किसी को ऑफर भी कर रहे हैं करने के लिए. Let's eat together. Shall we? Let's watch the movie together. Shall we? तो जितने भी imperative sentences let से स्टार्ट हो रहे हैं उसकी क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या आएगा? Shall we. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया. कोई और एग्जाम्पल बोलिए इसका. imperative sentences starting with let's. Let's play together. Shall we? तो ये बोलना है आपको. क्वेश्चन टैग है. क्वेश्चन टैग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट चैप्टर. So but here we are covering it in a very less percentage. ठीक है. Let's write together. Let's munch together. Shall we? नेक्स्ट लिखिए. शैल इज, हाँ एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, तभी तो मैं टोन चेंज कर रहा हूँ. लेट्स डांस टुगेदर. शैल वी. जब भी क्वेश्चन मार्क आता है तो लास्ट में वी की मॉड्यूलेशन वॉइस मॉड्यूलेशन हाई हो जाती है. नेक्स्ट लिखो. शैल इज यूज्ड फॉर, शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन फॉर मेकिंग सजेशंस. Shall is used with first person for making suggestions. Shall is used with first person for making suggestions. Example. पहला एग्जाम्पल मैं बनाऊंगा, बाद में आप बनाओगे. एग्जाम्पल. Shall we talk to the principal? Shall we talk to the principal? तो एग्जाम्पल है ये. Shall we talk to the principal? सर पर we तो third person. तो we is a first person, I is a first person. Total sitting, that kind of students who are sitting all together, those who are sitting in the class becomes we. We is not a third person. We is a first person. They is a third person. He, she, it, they. वो वाले. ही, वो, शी, वो, इट, जिसका कोई जेंडर नहीं है उसका इट लगा दिया. एनिमल के लिए इट लगा देते हैं. दे, वो लोग. हम लोग तो फर्स्ट में आ गए ना. वी,
शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट या शैल वी टॉक टू द प्रिंसिपल, शैल वी टॉक टू योर टीचर? बनाओ आप सजेशन के लिए, किसी को आप सजेस्ट कर रहे हो कि क्या हम करें ये आपके लिए, कैसे करते हैं? वो तो दूसरे में इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया। हाँ, ये तो वही हो गया, शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। और कुछ एनीथिंग डिफरेंट विच यू कैन मेक? कोच शैल वी डू दिस फॉर यू, है ना? शैल वी टेक योर पिक्चर? क्या हम आपकी पिक्चर ले लें? ठीक है, यू बोथ वर ट्राइंग वेरी हार्ड बट यू आर नॉट एबल टू टेक पिक्चर ऑफ बोथ ऑफ योर्स, सो शैल वी डू दैट थिंग फॉर यू? समझ गए? सो सजेशन दे रहे हो, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड बाय द पर्सन, either he will say yes to a suggestion or he will deny to that suggestion, oh no sorry thank you very much, है कि नहीं? समझ गए? चलिए नेक्स्ट लिखिए wood. Next modal we will talk about is wood. चलिए वुड के बारे में एनीथिंग यू नो? पास्ट। कैसे पास्ट? किसका पास्ट होता है वुड? वुड इज अ पास्ट ऑफ विल। वेरी गुड। सो कैसे यूज करेंगे इसको? पास्ट में जैसे आपने बोला है, यूज करके दिखाओ। हाँ, यूज करके दिखाओ विद एन एग्जाम्पल। वी वुड बी गोइंग टू द पार्टी। क्या बना हिंदी में? बनाओ ना, हिंदी में बनाओ। जितने मिस्टेक्स आप यहां पे करोगे उतना परफेक्शन आएगा। आई कैन गारंटी दैट थिंग। रिपीटेड पास्ट एक्शंस। रिपीटेड पास्ट एक्शंस में सबसे पहले वुड यूज होता है। व्हाट आर रिपीटेड पास्ट एक्शंस? जो हम पास्ट में रिपीट करते रहते थे, रोज करते रहते थे। हम रोज स्कूल जाया करते थे, हम रोज़ पार्क में गेम्स खेला करते थे, हम रोज़ स्कूल बस में जाया करते थे या साइकिल में जाया करते थे, हम रोज़ कार्टून्स देखते थे, हम रोज़ कॉलेज से बंक मारते थे, हम रोज़ स्कूल से जो भी है। ठीक है? सो ये क्या है? रिपीटेड पास्ट एक्शंस। उसके लिए क्या आएगा? वुड। जैसे कि ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। During my childhood, I would play football every day. समझ गए? That means what he's trying to say? He's trying to say that in my childhood I used to play football every day. तो पहला समझ आ गया सीन? वुड क्या कहाँ यूज होता है? रिपीटेड पास्ट एक्शंस के लिए। एग्जाम्पल से बताओ जल्दी। एग्जाम्पल जो आप पास्ट में करा करते थे। क्या करते थे पास्ट में आप? बोलो ना। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, व्हेन आई वॉज अ किड। बोलो 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 बोलो। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड के बाद सेकंड से पहले एक और बार एग्जांपल दे दो। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई वुड प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। During my childhood, I would talk very much, very loud. During my childhood, I would come first in the class. During my childhood, I would wear the fancy clothes. हाँ, ठीक है बिल्कुल। During lockdown, I would play video games. Yes, during lockdown, I would Play video games. बिल्कुल ठीक है। ठीक है कि मैं वो करता था ड्यूरिंग दैट लॉकडाउन प्रोसेस। दैट वॉज द रिपीटेड पास्ट एक्शन विच यूज टू टेक प्लेस एवरी डे। समझ गए? पहला पॉइंट है वुड का। सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट वुड के लिए आई होप यू हैव रिटन डाउन एन एग्जाम्पल। जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट ओनली।
वुड के लिए नीचे लिख देना रिपीटेड पास्ट एक्शंस पहला, और सेकंड में आ जाते हैं फिर हम। चलिए सेकंड वाले में लिखते हैं फॉर पोलाइट ऑफर्स। फॉर पोलाइट ऑफर्स, जल्दी लिखना, जल्दी फास्ट। फॉर पोलाइट ऑफर्स। ओके, लेट्स टेक समथिंग ऑन दिस। पोलाइट ऑफर्स, कौन देता है हमें पोलाइट ऑफर? माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देते हैं। कैसे? वुड यू लाइक टू गो टू इलांटे टुडे? वुड यू लाइक टू विजिट द बर्ड पार्क इन चंडीगढ़? बोलते हैं कि नहीं बोलते? रेस्टोरेंट में वेटर क्या बोलता है? हेलो सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? लगाता कि नहीं लगाता वुड? तो वुड लगा के क्यों बोल रहा है वो? बिकॉज ही इज गिविंग अस एन ऑफर एंड दैट ऑफर इज बीइंग गिवन इन अ वेरी वेरी पोलाइट मैनर सो दैट वी कुड एक्सेप्ट दैट ऑफर। तो हमें वो वुड लगा के बोलता है। समझ गए? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर? बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो सेकंड पॉइंट क्या है वुड का? फॉर पोलाइट ऑफर्स। जैसे आपका फ्रेंड भी आपको बोलता है कि मान जाएगा, इसको मना लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक ट्रिप पे जाना है, तो पोलाइट ऑफर वो आपको दे देगा। सीधा तो नहीं बोलेगा ना यू विल बी गोइंग ऑन अ ट्रिप, या सीधा वेटर बोला वेटर बोलता यू विल हैव पिज़्ज़ा टुडे। क्या आप खाओगे पिज़्ज़ा फिर उस दिन? कुछ भी नहीं खाओगे, बाहर आ जाओगे इस रेस्टोरेंट के कि ये तो ऑफर कहाँ दे रहा है, तो सीधा मेरे पे ऊपर क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है, कमांड दे रहा है मेरे को खाने की। समझ गए? पोलाइट ऑफर्स। अगला लिखो थर्ड। थर्ड में लिखिए फॉर पोलाइट वांट। फॉर पोलाइट वांट। वांट, WANT। सर वेटर को आंसर करना। बिल्कुल एग्जैक्टली, दैट वाज आई वाज कमिंग अपॉन। वेटर को अब हमने आंसर करना है। कैसे आंसर करेंगे? I would like to have a pizza. Yes, I would like to have French fries with Coke. I would like to have a small Pepsi, please. तो आपने क्या बोला? किसी को अपनी want बताई, that too in a very very polite manner. तो उसके लिए भी क्या लगाते हैं? would लगाते हैं। समझ गए? तो अभी तक हमने 3 देखे। पहला कौन सा था फूड वाला? वेरी गुड। सेकंड? Second one was? Third? Polite want. There are three things still left in which we use want, would. लिखिए अगला, fourth वाला. Asking someone to do something for you. Asking someone to do something for you. Asking someone to do something for you. चलिए अब I'll be telling you something, वही आपने बताना है। तो अगर मुझे सपोज करो यहाँ एक बॉटल पड़ी हुई है पानी की, मैं इनको बोलता हूँ कैन यू प्लीज़ पास मी दिस वाटर, या वाटर बॉटल ये बोलूँगा, या और अच्छा करके कैसे बोलूँगा? वुड यू प्लीज़ पास दैट बॉटल, वुड यू प्लीज़ पास माई लगेज, would you please call my father who is standing over there. ठीक है? would you please click picture, या कुछ भी। सो यहाँ पर आप किसी को क्या कह रहे हो? कुछ करने के लिए कह रहे हो। would you please close the door, would you please bring me some water, या कुछ भी। दूसरे तरीके से बोलेंगे इट्स नॉट रॉन्ग बट इट्स नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। जैसे अगर इनको बोलूँ प्लीज़ कैन यू प्लीज़ क्लोज दैट डोर, तो इज इट रॉन्ग? इट्स नॉट रॉन्ग बट इट्स नॉट ग्रामेटिकली द वे आई शुड आस्क दैट पर्सन टू डू समथिंग फॉर मी। समझ गए? वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? किसी को कुछ करने के लिए बोलने के लिए वुड लगा के, वुड यू प्लीज़ क्लोज दिस डोर, वुड यू प्लीज़ सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। सो दिस इज द करेक्ट मैनर, करेक्ट वे ऑफ यूजिंग वुड। ठीक है? चौथे वाला, फोर्थ वाला क्लियर हुआ? एग्जाम्पल बना लो एक, जैसे मैंने बनाया, सो दैट और क्लैरिटी हो जाए। बोलो। मेरे लिए वो विंडो खोल दो, क्या बोलोगे? Would you please open that window for?
चाहे प्लीज़ पीछे लगाओ चाहे आगे, वन एंड द सेम थिंग. वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो फॉर मी, या वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो. दैट्स इट. That was the fourth. Now we come on the fifth one. लिखिए फिफ्थ में लिखिए रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच वुड का यूज कर रहे हैं एज अ फिफ्थ पॉइंट. रिपोर्टेड स्पीच. चलिए बताइए व्हाट्स अ रिपोर्टेड स्पीच. हैव यू एवर कम अक्रॉस दिस वर्ड, डिफरेंटली साउंडिंग वर्ड रिपोर्टेड स्पीच. पता है कुछ? Yes, when we're talking to a second person, what we heard from the first person. For example, there's a picnic going to Shimla next week. He said that you will. You would. You would. चलिए, I'll explain once again. Suppose करो there is a picnic which is going to Shimla next week, and you are 3 friends, those who are part of that particular trip. So you guys decide what we are gonna bring to the picnic for to eat, for eating stuff. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? I will bring chips. I will bring आप बोलोगे I will bring coke. तो आप क्या लाओगे? I will bring some snacks. ठीक है, सब स्नैक्स ले लेते हैं. तो ये स्नैक्स लेके आ रहे हैं, कोक लेके आ रहे हैं, आपको चिप्स लेके आ रहे हो. तो घर जाकर यही स्पीच आप किसी को बताओगे ना, जब अपनी पैकिंग कर रहे होगे या मम्मा को या किसी को. जैसे इनकी मम्मा पूछते हैं आपकी फ्रेंड क्या ला रही है, क्या ला रही है, तो वहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच. आप ये वाली प्रेजेंट स्पीच वो पास्ट स्पीच में कैसे जाएगी? वुड लगा के. आप बोलोगे शी वुड ब्रिंग सम स्नैक्स. ठीक है, शी विल नहीं, शी वुड ब्रिंग सम स्नैक्स. क्लियर हुआ? सेकेंड एग्जाम्पल, एक न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है दैट टुडे इट विल बी अ रेनी डे, अ रेनी मॉर्निंग, एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम सनशाइन इन द आफ्टरनून. आपने ये न्यूज़ सुन ली, तो ये न्यूज़ कैसे कन्वे करोगे उनको? आप बोलोगे इट वुड रेन इन द मॉर्निंग एंड इट मे बी सनशाइन ड्यूरिंग द आफ्टरनून. तो आपने वुड लगा के बात की, क्योंकि यू what you did, you just distributed my direct speech to the other person. समझ गए? तब हम क्या लगाते हैं? would, जब हम रिपोर्टेड स्पीच किसी को बता रहे हो. Are we clear? एग्जाम्पल से लिख लो रिपोर्टेड स्पीच के नीचे, so that you can remember it for long. कोई भी नाम लिख लो. राम said, श्याम said, नेहा said she would bring soup for the picnic. Neha said she would bring soup for the picnic. Neha said she would bring soup for the picnic. चलिए लास्ट यूज रह गया वुड का. लास्ट में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में प्रेजेंट अनरियल कंडीशंस और इमेजिनरी कंडीशंस. प्रेजेंट अनरियल कंडीशंस और इमेजिनरी कंडीशंस. तो नाउ यू हैव टू इमेजिन समथिंग. सो वो इमेजिनेशन करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? वुड. अगर मुझे चाइनीज़ आती तो मैं चाइना चले जाता. इफ़ आई न्यू चाइनीज़ आई वुड हैव गॉन टू चाइना. इफ़ आई न्यू जापनीज़ आई वुड हैव स्पोकन जापनीज़, या आई वुड मूव टू जापान. अगर मुझे ये चीज़ आती होती. तो यू आर इमेजिनिंग समथिंग. ठीक है, व्हेन यू इमेजिन समथिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, द फाइनल कंक्लूजन के लिए वी ऑलवेज यूज द मोडाल. कौन सा वाला? वुड वाला. कैसे? एग्जाम्पल से बताओ. अगर मुझे ये आता होता तो मैं वो कर देता. बोलो.
अगर मुझे क्रिकेट खेलना आता तो मैं 6 बॉल में 6 छक्के लगाता। क्या बोलोगे? बोलो बोलो जल्दी से बनाओ। पहले एक बार जापान वाला एग्जांपल देना। एक जापान वाला क्या बताया था हमने बोला था कि इफ़ आई न्यू जापानीज आई वुड मूव टू जापान। If I knew how to play football, आई वुड हैव बिकेम अ football. प्रोफेशनल फुटबॉलर। बिल्कुल सही है। और कुछ? आप क्या चाहते हो कि मेरे को ये आता हो या आना चाहिए था? मुझे डांस आता होता। हाँ, इफ आई न्यू हिप हॉप डांसिंग आई वुड हैव, या आई वुड डांस इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, इन फ्रंट ऑफ द होल ऑडियंस। कोई भी जो डांस शो होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करता या करती। ठीक है, तो उसके लिए हैव यूज हो जाता है। आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन कौन सा होता है डांस वाला शो? कोई डांस इंडिया डांस